A big hello and welcome to PW Only IAS. So, in continuation of our series related to environment and ecology, today we are going to discuss the last final overview of environmental challenges. And in this entire series, we have seen various static prospects related to the field of environment and ecology. We have covered ecology and ecosystem. Simultaneously with this, we have seen major prospects of biodiversity and its conservation, climate change and its global negotiation, as well as sustainable development. By the means of this video session, we are going to talk about the remaining topics which we say as tidbits related to the field of environment, right? So let's begin with our session. Before we proceed further, let's have a quick look on our courses. If you are planning to prepare for this year's prelims, then you have the last and final opportunity to enroll with us in our prelims crash course 2026, which will make sure your chances to write mains will increase significantly. And if you have thought of giving this exam in 2027, then you can enroll with us in our 2-year course of Sankalp, which is in English as well as Hindi medium. But if you are planning to prepare for this exam in entirely English medium, then you can also have the opportunity to be with us in our Pinnacle English course. And अगर आप कॉलेज में हैं और आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस टाइम का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारे 3-year कोर्स प्रारंभ का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स को आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेल कर सकते हैं, राइट? So now we are going to start with where we left in the previous class. Today, by the means of this session, what we are going to cover? We are going to cover primarily the aspects related to e-vehicles and the policies related to e-vehicles. We will see how exactly these vehicles do work, because पिछले कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है। हम लिथियम आयन बैटरी की भी बात करेंगे, हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन क्या होता है और ई व्हीकल्स के कितने टाइप हैं। और आप जानते हैं कि इन द वेक ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर, हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण भी कम प्रदूषित हो और हमारी डिपेंडेंसी कोल पे कम हो। उसको लेकर बहुत सी पॉलिसीज सरकार ने लेकर आए और उन पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट है फेम, राइट? FAME, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम PM-E ड्राइव के बारे में भी बात करेंगे, राइट? Then the second topic that we are still left with is the land degradation and United Nations Convention to combat desertification. And आप लोगों को लगता होगा कि पिछली कुछ क्लासेस के अंदर मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं किया। UNCCD is still left because हमने UNFCCC, TBD दोनों को देख लिया है। Now it's time to see the aspect of desertification, because whenever we see Aravallis, and in this right context of the definition of Aravalli in the recent times, the impact of desertification, what it would be, and how it is going to impact the entire eastern part of Rajasthan. Then we will see few chunks of sustainable agriculture, because जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जो हमारी लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है या उसकी क्वालिटी है टू गिव अस द बेटर प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हमें कैसी प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के साथ रेजिलिएंट भी हों। उन सब चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। This would be the final overview of the static part of environment for this series, right? So let's first begin with the electric vehicles. See, सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, and this is something we call as alternative powertrain. पहले तो हम समझते हैं पावर ट्रेन क्या है। देखिएगा, जब भी आप किसी व्हीकल को देखते हैं, लेट्स से दिस इज अ व्हीकल जिसके ये 4 पहिए हैं, भले ही चारों अलग अलग साइज के अभी मेरे से बन गए हैं, बट दीज ऑल 4
these all four wheels are connected, right? They are connected with motor. Whenever this motor will be given the power, जब मोटर को पावर मिलेगी तो ये मोटर क्या करेगी, रन करेगी। और जब मोटर रन करेगी तो ये रोटेट करेगी किनको, इन व्हील्स को, राइट? तब ये व्हील्स क्या करेंगे, रन करेंगे। सिंपल सीधी बात है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को पावर कहां से मिल रही है? इस मोटर को पावर अगर मिलती है इंटरनल कंबशन इंजन से, बेसिकली इंजन से, और उस इंजन ने जो पावर दी, उस पावर ने इस मोटर को रन किया और उस मोटर से व्हील्स रन होने लगे। इसीलिए इसे बोला जाता है पावर ट्रेन। इसीलिए इसे बोला जाता है पावर ट्रेन, राइट? चलिएगा, अब ये पावर ट्रेन जो है, ये पावर ट्रेन किस पे रन कर रही है? इंटरनल कंबशन इंजन पे। अब आप समझेंगे कि सर ये इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। जब भी बात आती है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल इंजन की, या बात आती है डीजल इंजन की, ये जो दोनों इंजन हैं, इन्हें हम आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन की संज्ञा में की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्यों ये आईसी इंजन है? क्योंकि जब आप इनका ओवरऑल सेटअप देखोगे, तब आप देखोगे कि यहां पे ये पिस्टन है, राइट? और ये जो पूरा का पूरा फ्यूल है, जो फ्यूल की बर्निंग होनी है, जो फ्यूल है इसकी बर्निंग जो होनी है वो कहां होती है? इंटरनल बर्निंग होती है, इंटरनल कंबशन होता है। अब ये जो इंटरनल बर्निंग है, अब ये फ्यूल कैसा हो सकता है? ये फ्यूल कोई भी हो सकता है। ये फ्यूल डीजल भी हो सकता है और ये फ्यूल यहां पे पेट्रोल भी हो सकता है। बट इसकी जब बर्निंग होगी वो इंटरनल बर्निंग होगी, और उस इंटरनल बर्निंग से क्या रिलीज होगी? पावर रिलीज होगी। और इस पावर से क्या चलेगा? इस पावर से चलेगी मोटर, और ये मोटर किसको रन करेगी? ये मोटर रन करेगी व्हील्स को। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पावर ट्रेन, राइट? इसे पावर ट्रेन कहा जाता है। अब होता कैसे है ये? आपको बहुत गौर से प्यार से समझना। आपको लगेगा कि why we are talking about all these things, because remember now, whatever I am discussing in this series is of utmost importance and is being asked by UPSC in the previous years. This is something which is entirely created based on the previous year questions, right? So you can see here, यहां से क्या आएगा? इस जगह से you will give the entry to fuel, right? अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे की ओर आता है, और जब फ्यूल की एंट्री होती है तो ये पिस्टन इसे क्या करता है? कंप्रेस करता है। ये पिस्टन इसे क्या करता है? कंप्रेस करता है। ठीक है सर, पिस्टन ने फ्यूल को कंप्रेस किया। बस अब अगर आपको यहां पे देखना है कि ये डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में जो भी यहां पे फ्यूल को बर्न करना होगा, फ्यूल की जब बर्निंग होगी ना, उस बर्निंग में स्पार्क प्लग नहीं होता ना, वहां पे स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं होता। वो क्या करते? कंप्रेस करके करके इतना हीट कर देते हैं। कंप्रेशन से, इस पिस्टन के कंप्रेशन से क्या किया जाता है? हीटिंग की जाती है, और उस हीटिंग से ये जो फ्यूल है इसे क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, एंड इट गिव्स अस द पावर। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डन डस्टेड, गेम ओवर, राइट? बट अगर यहां पे ये फ्यूल कौन सा है? यहां पे डीजल है। और अगर यहां पे फ्यूल पेट्रोल है, और उस पेट्रोल को आप क्या कर दें? पेट्रोल को आप स्पार्क प्लग से इनिशिएट करें। स्पार्क प्लग है जहां से आप क्या इनिशिएट करते हैं? बर्निंग इनिशिएट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोल इंजन कहते हैं। हाउ डज इट वर्क? लेट्स सी फर्स्ट, हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क? It works well with this part. Let me show you this. Just give me a minute. Here we have this as the vehicle. अब आप यहां पे देखिएगा, यहां से फ्यूल आया, ये इसका कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन से बर्निंग हुआ, यहां से एनर्जी जनरेट हुई, और ये मोटर रन हुई। ठीक है, अब अगर यहां पे कंप्रेशन के साथ साथ, अब अगर देखो स्पार्क प्लग से बर्निंग हो रही है तो वो पेट्रोल इंजन है, और अगर सिर्फ कंप्रेशन से ये बर्निंग हो रही है तो ये कैसा इंजन है बेटा? तो ये माना जाएगा डीजल इंजन। इसे हम बोलते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। बट नाउ ये जो पूरी की पूरी कहानी है बेटा,
ये सारी कहानी तो डिराइव कर रही है कहां से? ये सारी कहानी तो चल रही है फॉसिल फ्यूल पे। बट अब हम इस फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़कर ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन देख रहे हैं। यानी कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर ना चलते हुए हमें ऐसी पावर ट्रेन देखनी है, ऐसा चीज देखना है जो कि इन पे निर्भर ना हो एक्सक्लूसिवली। अगर ये एक्सक्लूसिवली इस पे निर्भर नहीं है तो उसे हम ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन कहते हैं। तो अब आओ इस डेफिनेशन को समझते हैं। ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन इंक्लूड्स ऐसा प्रपल्शन सिस्टम जहां पे दैट आर नॉट बेस्ड, जो कि एक्सक्लूसिवली इंटरनल कंबशन इंजन के बेस पे ना चलता हो। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे वहां पे इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, तो वो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन है, क्योंकि वहां पे भी आपको जरूरत नहीं है किसी भी आईसी इंजन की। अगर आप हाइब्रिड इंजन देखते हैं, जैसे इनोवा हाईक्रोस जो आजकल गाड़ी आती है जो कि हाइब्रिड है, वो भी एक्सक्लूसिवली आईसी इंजन नहीं है। वहां पे भी आपको बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे वो बैटरी से गाड़ी रन करती है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन जिन्हें हम कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन कैसे वर्क करती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये चार पहिए हैं, चारों पहियों को एक मोटर के द्वारा रन किया जाना है, वो मोटर इंजन के थ्रू चलेगी। अब इंजन कैसा है वो हमने देखना है। अगर वो इंजन आईसी इंजन है तो वो पावर ट्रेन है, एक्सक्लूसिवली आईसी इंजन है तो पावर ट्रेन है। अगर इस आईसी इंजन के साथ हमने बैटरी लगा दी तो वो हाइब्रिड हो जाएगा, तो वो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन हो जाएगा। दूसरा, इस आईसी इंजन की जगह पे मैंने पूरा लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस कर दिया तो वो ई व्हीकल हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं किस क्या क्या हम इस पूरे के पूरे संदर्भ में पढ़ेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द ई व्हीकल, what are the positives of e-vehicle, what are the various challenges to the adoption of e-vehicles in India, what are the solutions to increase the adoption, है ना। और उसके साथ साथ we'll see some aspect of lithium ion battery and government's effort to talk about government's effort to promote this EV, where we will not see these two three parts because they are the aspects of geography, right। जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आपको यहाँ पे वहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बट आई विल कवर दीज थ्री थिंग्स हेयर इन एनवायरमेंट। फेयर इनफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ई व्हीकल्स एंड व्हाट आर देयर बेनिफिट्स। देखिएगा, ई व्हीकल्स जो हैं वो ऐसे व्हीकल्स हैं दैट हैव एन इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेड ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। सिंपल सीधी सी बात है। When we have this motor which is derived, which is driven on the battery rather than on IC combustion engine or internal combustion engine, तो उसे हम ई व्हीकल कहते हैं। This IC engine based vehicles are based on the fossil fuels, they work on the fossil fuels, whereas electric vehicles are using the battery pack to power the electric motor powertrain। जो इलेक्ट्रिक मोटर पावर ट्रेन है उसको कौन चार्जिंग दे रहा है, उसको कौन एनर्जी दे रहा है, बैटरी एनर्जी दे रही है। द पावर टू रन द व्हीकल इज प्रोवाइडेड बाय द मोटर इंस्टेड ऑफ फ्यूल इंजन इन आईसी इंजन व्हीकल्स। इसीलिए मैंने आपको ना जो इसका बेसिक पढ़ाया, भले ही यहाँ पे मोटर ना होती हो, बट मैंने आपको बस एक चीज इस तरीके से समझाई है कि यहां से कनेक्शन आपको दिमाग में रहे कि ये मोटर अगर इलेक्ट्रिक मोटर हो गई तो ये ईवी बन जाएगा। सिंपल सीधी बात है। अगर ये चक्के, ये पहिए इंटरनल कंबशन इंजन के फ्यूल बर्निंग होने से चल रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं पावर ट्रेन, अदरवाइज इट विल बी टर्म्ड एज द ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन। ये देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द इंट्रिकेसीज, एंड इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टू जज मी, सर what are you talking about? I am also a chemical engineer who have worked with Reliance Industries, so I know better all these things, but I just do not want to confuse you. We have to limit our dimensions and arena just till what? We have to just limit our arena
टू द यूपीएससी रेलेवेंट थिंग्स, राइट। तो हमें समझना है कि थोड़ा लॉजिकल पता होना चाहिए, पूरा इंजीनियरिंग थोड़ी जानने का है हमें, वो इंजीनियर को भी नहीं आता होता है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ईवीज हमें पता लग गया। अब देखिए ये ईवीज किस तरीके की हैं। पहले मैं आपको 3 तरीके की ईवीज से वाकिफ करवाना चाहता हूं। वन इज व्हाट वी कॉल एज द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है? द व्हीकल इज गिवन एनर्जी ऑन, एनर्जी जो एनर्जी है इस व्हीकल के पास, जो जो इंजन चल रहा है वो कौन सा है? इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन है, ठीक है, आईसी इंजन है, सॉरी इंटरनल कंबशन इंजन है। बट उसके साथ साथ यहां पे एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये प्लग्ड इन नहीं है, मतलब आप इस मोटर को प्लग इन नहीं है, मतलब आप इस मोटर को आउटसाइड चार्जर से, आउटसाइड सोर्सेज से चार्ज नहीं कर सकते। आउटसाइड सोर्सेज से चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड सोर्सेज से आप चार्ज नहीं कर पाते, राइट। व्हाट हैपेंस हियर इज व्हेनेवर दिस इंजन, मान लीजिए जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, इनोवा की बात करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चलने लगी। जब गाड़ी चल रही है, द एंटायर व्हीकल इज रनिंग ऑन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। अब होता क्या था पहले, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब गाड़ी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, वो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया वैसे ही वो हीट के अंदर क्या हो जाती थी? लॉस हो जाती थी, राइट। अब हम चाहते हैं जब काइनेटिक एनर्जी है इंजन के पास, गाड़ी के पास, उसमें जब ब्रेक लगा, वो जो हीट लॉस हो रहा था, ये एनर्जी स्टोर हो जाए कहां पे? किसी एक बैटरी में। यानी कि अब जब आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी चल रही है, जैसे जैसे गाड़ी रुकेगी फिर चलेगी फिर रुकेगी, जब रुकती है ना गाड़ी, वो धीरे 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 करके जो भी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो रही थी पहले, उसका कुछ अमाउंट कहां पे स्टोर कर देती है? वो इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्टोर हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो जाती है उससे? इलेक्ट्रिक मोटर उससे हो जाती है चार्ज। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक, और आपको पता है कि कोई भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय और क्रिएट तो कर नहीं सकता, हम तो उसका फॉर्म बदल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को किस में स्टोर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये मोटर चार्ज हो गई इससे। अब क्या हुआ, अब इसीलिए अब आप देखना, जब भी इनोवा स्टार्ट होती है, वो पहले कुछ 15 20 30 तक की स्पीड पे जब चलती है तो वो बैटरी पे चलती है, तो वो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन हो गया ना। बट ऐसा नहीं है कि आप इनोवा की बैटरी को बाहर चार्ज कर रहे हैं प्लग लगाकर, नो, राइट। तो इसे बोला जाता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहां पे बैटरी भी है और इंजन भी है। जो मोटर है, ये मोटर बैटरी के द्वारा चल रही है, इलेक्ट्रिक मोटर है, बढ़िया चलता है, और गैसोलीन के द्वारा चलने वाला इंजन भी है। तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन, बट उसके साथ साथ वी हैव व्हाट, वी हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर, डन। अब अगर मान लो मैंने एक ऐसा इंजन बनाया, ये तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जहां पे मैं एक ऑप्शन ये भी दे दूं कि इस इलेक्ट्रिक मोटर को मैं बाहर से चार्ज कर सकूं प्लग लगा के। अगर मैं यहां पे प्लग इन से चार्ज कर सकूं तो इसे बोला जाएगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेयर इनफ, डन। देन अगर मैं कहता हूं कि मैं इस इंजन को रिप्लेस करके कंप्लीटली अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक मोटर पे चलाना चाहता हूं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। और वो अगर कंप्लीटली होगा तो डेफिनेटली उसे चार्ज करने के लिए वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्लग इन। प्लग इन करने का, चार्ज करने का ऑप्शन होगा, जिसे हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से जानते हैं।
This is something which we have to understand. These are the three main types of electric vehicles. तो कहानी ये आई, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी है, ये बैटरी ही मेजरली चार्ज कर रही है इस मोटर को, और बैटरी ही इस मोटर को रोटेट करती है जिससे व्हीकल चलता है। इस कारण से जब हम ईवीज की बात करते हैं तो मेजर गेम कौन सा है? मेजर गेम है बैटरी का। और बैटरी कौन सी है बेटा? बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। बैटरी कौन सी है? लिथियम आयन बैटरी है। फेयर इनफ। तो दिस इज द लिथियम आयन बैटरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि तीन मेजर तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे रन करते हैं। अब देखिएगा, when it comes to the types of EV, we are going to talk about the battery electric vehicle, जो कि fully powered by electricity है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो व्हीकल्स uses both the internal combustion, usually पेट्रोल, एक तो पेट्रोल यूज करते हैं, ऊपर से ये क्या यूज कर रहे हैं? पेट्रोल के साथ साथ ये यूज करते हैं बैटरी को भी, जिससे वो चलता है। बोथ दी एंड द बैटरी पावर्ड मोटर पावर ट्रेन। रेगुलर हाइब्रिड्स कैन नॉट, ये प्लग इनटू दी प्लग नहीं होते ग्रिड के साथ। और उसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है, जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन भी है, बैटरी भी है, और एक्सटर्नल सॉकेट से वो चार्ज भी होती है। ये हो गए तीन मेजर टाइप्स, राइट। देन प्रोसीडिंग फर्दर, ये आपके सामने है इंटरनल कंबशन इंजन, दिस इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। अब इनमें क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जॉस्ट से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड से, हाइब्रिड में थोड़ा कम है, प्लग इन में उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर किससे चलाओगे गाड़ी? प्लग करके चार्ज कर सकते हो, आपको फ्यूल पे निर्भरता नहीं है चार्ज करने के लिए। यहां पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एमिशन नहीं है। अब अगर कोई ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई एमिशन नहीं है, तो वो एकदम गलत बात बोलता है। Electric vehicles are, EVs are the cosmetic solution of the real problem of this world. Why I call it as the cosmetic solution? Because you are charging your entire gadi with electricity, which is, this electricity is nothing but this electricity is coming from coal based thermal power plant. तो आपकी भले ही सड़कों पे एमिशन ना हो रहा हो, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। इसीलिए यहां पे एक वर्ड लिखना जरूरी होता है, वो ये है नो टेल पाइप एमिशन। मतलब जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी से किसी तरीके का कोई एमिशन नहीं है। अगर कोई बोले ईवी से बिल्कुल एमिशन खत्म हो जाएगा, तो ये इट इज थरली रॉन्ग। उससे एमिशन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए हमें पूरी एनर्जी को रिन्यूएबल सेक्टर पे डालना पड़ेगा। कि हाँ, ये बात सत्य है कि आप अपने घर पे जो गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, वो गाड़ी चार्ज जो है वो सोलर एनर्जी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एमिशन खत्म हो गया। बट लार्जली ऐसा तो नहीं होता। Fair enough. So that's what we need to understand. It is the cosmetic solution. That's why we are planning to have the hydrogen. इसीलिए जब मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ाया तो ये बोला कि हाइड्रोजन से अगर गाड़ी चले, तो आप ये सोचो कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से चले तो वो हाइड्रोजन आया रिन्यूएबल सोर्सेस से, और उस हाइड्रोजन से गाड़ी चली तो उसका एमिशन में जो टेल पाइप होगी वहां से क्या निकलेगा? वाटर वेपर, मॉइस्चर निकलेगा ना, H2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू दी H2O। तो यहां से आपको समझ में आना है। बट ठीक है, धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी हाउ कुछ ना कुछ एमिशन तो इससे कम होगा ही। बट द मेजर प्रॉब्लम लाइज विद दिस बैटरी। अब हमें आईसी इंजन हमने समझ लिया कि ठीक है, फ्यूल आता है, कंप्रेशन होता है, बर्न होता है, एनर्जी मिलती है, तो हमें यह भी तो समझना पड़ेगा ना आज की क्लास के अंदर, ये बैटरी जिससे चल रही है लिथियम आयन बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है? वी हैव टू सी दैट एज वेल, राइट। But before coming to that part, let's talk about this. What is electric vehicle? We are done with this. Now let's talk about positives of EV. क्या है positives of EV? आप देखिएगा, सबसे पहले when it comes to benefit, the electric vehicle have the low maintenance,
and most importantly they have zero tailpipe emission. Third, if you will compare many electric cars with the cars driven on petrol and diesel, the running cost, actual running cost of electric vehicle is way lesser than that of the fossil fuel based engines, IC engines. And specifically when you come to diesel part, डीजल इंजन का तो और भी ज्यादा आपको क्या दिखाई देता है, शोर दिखाई देता है. पेट्रोल इंजन का उससे कम है. ईवी का तो नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल ही जीरो है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसका जो टेल पाइप का एमिशन है वो बिल्कुल नहीं है. नो टेल पाइप एमिशन, राइट. और अगर एमिशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये लेस पोल्यूटिंग है, राइट. ये लेस पोल्यूटिंग है. सेकेंडली, जो इसका रनिंग कोस्ट है, दैट रनिंग कोस्ट इज रिलेटिवली लेसर. अगर यहां का रनिंग कोस्ट क्या है, कम है. थर्ड, अगर हम यहां पे देखें रनिंग कोस्ट के साथ साथ जो इसका नॉइज पोल्यूशन है वो भी क्या होता है, कम होगा. नॉइज पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है. नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ यहां पे जब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो वो हमें आती है मेंटेनेंस कोस्ट की, मेंटेनेंस कोस्ट की और रनिंग कोस्ट की, राइट. मेंटेनेंस कोस्ट जो है डीजल की सबसे ज्यादा है, राइट. मेंटेनेंस कोस्ट कम है और उसके साथ साथ जो इसकी रनिंग कोस्ट है वो भी क्या है, रनिंग कोस्ट है वो भी क्या है, कम है. तो दिस इज हाउ. बट हाँ, ये बात जरूर है कि आप बोलो कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी बड़ा महंगा है, तो सरकार ने उसके लिए सब्सिडी भी तो दी हुई है ताकि आप उसका एडॉप्शन फास्टर करें. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट देखें. बेनिफिट्स, लोअर रनिंग कोस्ट. ठीक है. देखिए ईवीज जो है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अगर हम बात करें, EVs can convert 60% of the electrical energy from the grid to power the wheels. मतलब जो एनर्जी आपने चार्ज की है, मतलब आपने 100 यूनिट एनर्जी दिया तो उसमें से वो 60 यूनिट तक एनर्जी का क्या कर लेगी, यूटिलाइजेशन कर लेगी. जबकि अगर हम बात करें, मैंने अगर पेट्रोल या डीजल डाला तो वहां पे कन्वर्जन रेट मात्र कितना है, 17% से 21%. ये जो एफिशिएंसी होती है ना, ये एफिशिएंसी इंजन की एफिशिएंसी होती है. अगर आप मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर हैं तो आपने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और वो भी अराउंड 33% के आसपास आपको देखने को मिलेगी. तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम है जो कि आइडियल है, तो डेफिनेटली उससे कम तो हमें एफिशिएंसी देखने को मिलेगी ही. तो वो एफिशिएंसी आती है मात्र 17% से 21% के आसपास, राइट, जो कि फ्यूल के अंदर स्टोर होती है. इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहा हूं तो वो फ्यूल भरवाने से क्या होगा, रिलेटिवली चीपर साबित होगा. दिस इज फर्स्ट बेनिफिट, क्योंकि आपको ये सब्सटेंशिएट भी तो करना पड़ेगा कि आपकी रनिंग कॉस्ट क्या है, कम है. सेकेंड, अगर हम यहां करें मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज अगर हम देखें फ्यूल इंजन के अंदर जो आईसी इंजन है उसके अंदर रनिंग कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं. जब बहुत सारे रनिंग, यहां तो वायर्स हैं सिर्फ, है ना, वह रनिंग कंपोनेंट्स है, मोटर चल रही है, कंबशन चल रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें रनिंग कंपोनेंट ज्यादा होने के कारण वहां पे वियर एंड टियर ज्यादा है. इसीलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, द सर्विसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पे ज्यादा और यहाँ पे कम है, राइट. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जीरो टेल पाइप एमिशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम ईवी से एमिशन की बात करेंगे तो एमिशन इज क्वाइट लेसर, रिलेटिवली लेसर देन दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, राइट. इसी वजह से EVs have the potential to reduce the air pollution significantly. It can slow down the pace of global warming, and even if emissions are taken place somewhere else with the form of thermal power plant, फिर भी वो डीजल और पेट्रोल से क्या है, काफी कम है, राइट. तो ये बात आप देख लीजिएगा, ये रिड्यूस करेगा एयर पोल्यूशन को, स्लो डाउन द पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इवन इफ एमिशन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी like thermal power plant are taken into account, petrol or diesel vehicle emit almost 3 times more carbon dioxide than the average electric vehicle. Then electric motors function silently and
प्रोड्यूस मच लेस नॉइज, ये आपको पता ही है, मैं आप भी पहले भी बात कर चुका हूं। अब ये पूरा कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आईसी इंजन के साथ। जीरो टेल पाइप एमिशन, क्लीनर एनर्जी है, कॉम्प्रिहेंसिव एमिशन रिडक्शन है। देन ऑयल के ऊपर जो हमारी रिलायंस है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, द रनिंग कॉस्ट हेयर इज रिलेटिवली लो, एंड यहाँ पे रनिंग कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। परफॉर्मेंस इसकी स्मूथ और क्विक एक्सिलरेशन है, यहाँ पे ग्रेजुअल एक्सिलरेशन देखने को मिलता है। देन यू हैव नॉइज लेवल, नोटिसेबल इंजन है, राइट, नॉइज लेवल ज्यादा है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रही है अगर आप डीजल की ओर जा रहे हैं, राइट। बस यहाँ पे एक बात है जो आपको समझनी है, द इनिशियल प्राइसिंग, द इनिशियल प्राइसिंग इज हाई। इनिशियल प्राइसिंग जो है वो क्या है, हाई है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट आपको लगता है कि क्या कवर हो पाएगी भी या नहीं। दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर एज फार एज ईवी एंड आईसी इंजन इज कंसर्न्ड। नाउ बेनिफिट्स देखने के बाद अब हमें समझना है कि हमने व्हाट आर दी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे पहला, there is an anxiety problem between among the people that the range of electric vehicle is very less. Let's say if I am living in Delhi right now and I want to travel back to my home place, hometown, and it is around 400-500 kilometers, and the range of EV is, let's say, 150-200 kilometers, then it would not be a better idea for me to run on an EV, because I have to take a halt for around 1.5 hours to charge that entire car. Otherwise, something this is something which is a big problem for me, right? And agar if I'm in hurry, then eventually I will not be able to do so. So uske साथ साथ the inefficient charging system, right? हमें ये भी पता होना चाहिए कि बैटरी चार्जिंग सिस्टम्स कहाँ है। पेट्रोल पंप्स तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम चार्ज कर सकें कहीं पे भी। अब देखिएगा, बैटरी एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड। अभी हमने जो काम करना है वो इसी पे करना है कि जो हमारी बैटरी एफिशिएंसी है उसके ऊपर हम काम करें, राइट। जो कि इंक्रीज्ड बैटरी एफिशिएंसी एंड एक्सपेंशन ऑफ चार्जिंग पॉइंट। एक तो चार्जिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दो और ऊपर से बैटरी का एक्सपेंशन कर दो, राइट। या तो बैटरी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दो और उसके साथ साथ चार्जिंग पॉइंट्स को एक्सपेंड कर दो, राइट। अब दूसरा, बैटरी स्वैपिंग will also create an anxiety. The discharged battery can be replaced by a charged battery. ये तो कर देगा वेटिंग टाइम को कम, राइट, ये आप कर दो, ठीक है। और ये जो बैटरी को टैकल करने का एस्पेक्ट है वो भी क्लियर किया जा सकता है। फिर लेंदी चार्जिंग टाइम है, यही तो मैंने बात किया, मस्ट हैव प्लेस्ड इन रीजन्स वेयर पीपल में लीव देयर ऑटोमोबाइल्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कैसे हम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लेंदी चार्जिंग टाइम चार्जर्स मस्ट बी प्लेस्ड इन रीजन्स वेयर पीपल में लीव देयर ऑटोमोबाइल्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर हम ओवरऑल रिलायबिलिटी और करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे आना चाहते हैं, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ की कंपोनेंट्स फॉर बैटरीज, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे जब भी आप मेड इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल देख भी रहे हैं, उसमें भले ही ये चार्जिंग चल रही हो, है ना, बट अभी भी हम ये देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो चाइना में ही हो रहा है। दैट इज समथिंग विच इज द की कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, right? Then moving ahead, the government must promote private investment in battery manufacturing. Of course, जब तक प्राइवेट आप गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम इस न्यूअर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। हमें एक स्टेबलाइज करना है पॉलिसी इन्वायरमेंट बाय फोकसिंग ऑन टैक्स ब्रेक्स एंड नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स, राइट, ये बात हुई।
देन उसके साथ साथ वी कैन यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इको फ्रेंडली तरीके से चार्ज करेंगे। जैसे मैंने बोला, सोलर एनर्जी से आप बैटरी को चार्ज करो। देन व्हाट आर दी पॉलिसी मेजर्स? देखिए, पॉलिसी मेजर्स में हम सबसे पहला चाहते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो, लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसे प्रमोट किया जाए। देन सेकंड, हम चाहते हैं पॉलिसी मेजर्स फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग मटेरियल्स यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज जो कि नीडेड है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन माइंस इन इंडिया, लिथियम की माइंस के अंदर हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करें और बैटरी का जो वेस्ट है उसका रिसाइकलिंग जो है उसको बेहतर करें। एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ईवी इंडस्ट्री। आपने गाड़ी ले ली इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने होम टाउन से, अब इट इज अ बॉर्डर एरिया है ना, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का देर इज अ फ्रीक्वेंट इशू, राइट? इट्स नॉट अबाउट द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट, but it's about sometimes the shedding, load shedding is there। एंड अभी मेरे को कहीं जाना है, मेरी गाड़ी चार्ज नहीं, बट लाइट भी नहीं है, क्या करूंगा मैं उस गाड़ी का? तो हमें ये बात तो इंश्योर करनी ही पड़ेगी कि भाई रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, ताकि हम ईवी सेक्टर को ग्रोथ, ईवी सेक्टर का ग्रोथ कर सकें। देन नाउ लिथियम आयन बैटरीज, हाउ डज दिस लिथियम आयन बैटरी डू द वर्क? देखिए, जो हम यहाँ पे थे, इस भाग पे आते हैं। चैलेंजेस पता लग गया, उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन देख लिए। अब हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी का। ठीक है, हमें सॉल्यूशन के रूप में पहली बात तो पॉलिसी स्ट्रीमलाइनिंग करना है, राइट? पॉलिसी स्ट्रीमलाइनिंग करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्या करना पड़ेगा? एनहेंस करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करो। और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक जो हमारे टाइज हैं दुनिया के साथ, वहां पे उसे इंक्रीज किया जाए ताकि हमें लिथियम आयन का एक्सेस हो और भारत के अंदर जो नई माइंस हैं उनको ढूंढा जाए। लिथियम भारत के अंदर 3 जगहों पे आपको रॉक्स के रूप में दिखाई देगा। वन इज इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, सेकंड इज द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, and third is the Riyasi district, which is the very recent discovery, Riyasi district of Jammu and Kashmir, right? So this is one thing. Now let's talk about the how government is promoting it, but before that let's talk about the lithium ion battery. देखिए, जो आपका फोन है, ये फोन लिथियम आयन बैटरी पे काम करता है। पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाई लिथियम आयन? मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक होती है लेड एसिड बैटरी, जिसमें लेड का जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो लेड के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड एनोड वाली बात कर। अब आपका जो घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, ये इन्वर्टर जो है, ये इन्वर्टर लेड एसिड बैटरी का है। इस इन्वर्टर को पूरा दिन भर चार्ज हम करते रहते हैं, बट 1 घंटे बाद लाइट जाती है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल की एनर्जी को स्टोर करने की एक डेंसिटी होती है, एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि वो एक स्टिपुलेटेड वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने अपना फोन चार्ज पे लगाया पूरी रात भर, बट जब वो 100% हो गया बेटा, तो क्या उसके बाद भी आप उसको जब चार्ज करते रहोगे तो वो आपको क्या लार्ज स्केल पे ऐसा थोड़ी है कि बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो जितना मर्जी देर चार्ज करते रहो उतना ही रहेगा, में कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सीधा ये है कि हर बैटरी का अपना एक डेंसिटी होता है और उसी डेंसिटी के मुताबिक वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे लिथियम जो है, इसका जो एनर्जी डेंसिटी है, इट इज रिलेटिवली हाई। ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होने के कारण
लिथियम आयन बैटरी कैन गिव यू दी बेटर रेंज। अब उसमें भी बेटर रेंज किस पे निर्भर करेगी कि आप कितनी बड़ी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई फोन आते हैं जो बोलते हैं कि एक बार चार्ज करो 2 दिन नहीं हिलेगा वहां, और फोन थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि लिथियम आयन की बैटरी बड़ी हो जाती है। जो आप एमएएच करते हैं ना, इतने एमएएच की है, 2000 की है, 2500 की है, उसमें क्या है, वो उसकी एनर्जी डेंसिटी है कि वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है वाइल चार्ज्ड टिल 100%, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि ऐसा मटेरियल ढूंढ डालना जिसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। मतलब आपने एक बार चार्ज कर दिया, उसने इतना एनर्जी स्टोर कर लिया कि वो आपको 800 किलोमीटर का रेंज दे जाए। ये सेक्टर दमदार हो जाएगा, क्योंकि 800 किलोमीटर तक लगातार चलने वाली जो पेट्रोल गाड़ी है वो भी आपको नहीं मिलेगी, है ना। बस ये बात है कि आप इस चीज को समझें कि वो क्या होगा, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। अब जो लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, इसके अंदर कैसे वर्किंग है इसको समझा जाए। देखिए इसमें होते हैं एनोड एंड कैथोड, है ना, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। और इन एनोड और कैथोड के अंदर जो एनोड है, एनोड बना होता है ग्रेफाइट का, और जो कैथोड है, कैथोड होता है, जो कैथोड है, दिस इज कैथोड, कैथोड इज लिथियम मेटल ऑक्साइड। लिथियम और कोई भी मेटल हो सकती है, आयरन हो सकती है, कुछ भी, लिथियम मेटल ऑक्साइड। और एनोड जो है वो बना होता है ग्रेफाइट से, राइट। ग्रेफाइट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन है, राइट, कार्बन है। अब यहां पे दो स्टेजेस आएंगी। पहली स्टेज ये होगी कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, आपने अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगाया, ये एनोड है, ये कैथोड है, और एनोड और कैथोड के बीच में आपने चार्जिंग पे लगा दिया इसको। और दूसरा स्टेज ये है कि आपने चार्जिंग से हटाया और आप इसको अब क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कैसे यूज होगा और कब तक यूज होगा। यही माजरा है। अब इसकी वर्किंग देखो क्या है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए आपको अगेन यू हैव टू सी दिस एनिमेशन so that you will be in a better position to comprehend it what exactly it is happening. This is the time of charging. चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। पहले तो एक बात समझो कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर ये है कैथोड, जैसे कि मैंने बोला लिथियम मेटल ऑक्साइड है, और एनोड जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ है। फेयर इनफ, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। अब ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग होने का मतलब है आप इसको पूरे के पूरे बैटरी को चार्ज कर रहे हो, इसको एनर्जी दे रहे हो। फिर उसके बाद क्या है, जब ये आप बीच में से हटा लेंगे पोजीशन और यहाँ पे बल्ब लगाएंगे या अपना यूसेज करना स्टार्ट करेंगे, तब ये कैसे बिहेव करेगी। इसके अंदर आप देखिएगा, दिस इज द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जब बैटरी का डिस्चार्ज होना है तब क्या होगा, जो भी, जब आपने चार्ज की थी ना बैटरी, मैं आपको बताता हूं, जब आपने चार्ज किया था बैटरी को, तब उस समय पे क्या हुआ था, जो लिथियम मेटल ऑक्साइड है, जो कि आपको दिखता है यहाँ पे कैथोड पे, ये लिथियम मेटल ऑक्साइड के जो लिथियम आयंस हैं, वो सारे लिथियम आयंस जाके एनोड पे भर्ती हो जाते हैं, और एनोड में लिथियम जो ग्रेफाइट है इसके साथ मिल जाता है, राइट। इसको हम लिथियम और कार्बन का एक मिक्सचर कहते हैं। ये लिथियम और कार्बन दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों मिल गए। अब जब डिस्चार्जिंग का टाइम आएगा, जब आप यूज करोगे, तब लिथियम कार्बन से वापस लिथियम आयन कहाँ की ओर चलने लगते हैं, अपने कैथोड की ओर चलने लगते हैं और मेटल ऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं। तो बेसिकली लिथियम आयंस ट्रेवल कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के बीच में से, और ये सॉल्यूशन होता है पॉलीइथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन का, राइट। पॉलीइथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन का सॉल्यूशन आपने डाला हुआ है, और यहाँ पे सेपरेटर है, ये मतलब पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन। अब यहाँ पे क्या है, लिथियम प्लस आयन जब इधर जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसके ऑपोजिट करंट चल रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टू टेल मी।
यहाँ पे देखो लिथियम प्लस इधर जा रहे हैं, तो ऊपर से कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया। अब चार्जिंग के समय पे आपने चार्ज लगाया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इधर की ओर जाएंगे, और यहाँ पे जो लिथियम है वो लिथियम जाके यहाँ पे किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है। अब जब कार्बन से अलग होगा, जब आपने इसको वापस शुरुआत करनी है डिस्चार्जिंग की, तो लिथियम सारे इधर आए और ऊपर से इलेक्ट्रॉन बहने लगा, मतलब क्या चलने लगी, इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी। So that's how the lithium battery works, right? So it is about graphite in at anode and उसके साथ साथ कैथोड पे आपको देखने को मिल रहा है ये चार्जिंग मीटर, ध्यान रहा। So this is one thing. I hope it is being cleared. So after this lithium ion battery, जब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, तो आप इस वर्किंग को यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाउ डज इट वर्क। देखिएगा, both electrodes in a lithium ion battery can intercalate or absorb the lithium ions when the battery is being charged। जब बैटरी को चार्ज किया जाएगा, lithium's ions are absorbed and stored in anode during discharging। वही lithium ions वापस फ्लो बैक करेंगे टू द कैथोड, और उस सर्किट में से कौन चलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करेगा, जो कि क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और यही प्रोसेस टू एंड फ्रो चलता रहता है और कहानी हो जाती है खत्म, कभी चार्ज कभी डिस्चार्ज, राइट। जो सेल होता है वो लिथियम सेल है, वो आयन सेल नहीं है, यहाँ पे आयन है, इसीलिए इसको वापस आप रिचार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लिथियम ही क्यों चूज किया गया। पहली बात, लिथियम एक लाइट मेटल है और ऊपर से एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली लिथियम आयंस को पास कराती हैं, और उसके साथ साथ लिथियम की जो एनर्जी डेंसिटी है बेटा वो भी ज्यादा होती है। तो एनर्जी डेंसिटी का ज्यादा होना, चार्जिंग बहुत अच्छा होना, फिर आयंस को इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट होना, इन सब क्वालिटीज की वजह से लिथियम को चूज किया गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लिथियम और ग्रेफाइट, इन दोनों के जो एनोड और कैथोड हैं, जैसे आपने अभी देखा ना कि जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एनोड दिख रहा है वो तो आपको दिख रहा है ग्रेफाइट का, और कैथोड जो है वो है लिथियम मेटल ऑक्साइड का। वो हम एनोड और कैथोड ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। तो नाउ लिथियम आयन बैटरी के बाद अब हमने कौन सी स्कीम चलाई इसको प्रमोट करने के लिए। वी हैव दिस स्कीम ऑफ फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम। तो पहले हम इस स्कीम को देखते हैं, देन वी विल सी द मेजर अप्रूवल, बिकॉज गवर्नमेंट ने फेम 1 के बाद स्टार्ट किया है फेम 2 को। पहले देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द एस्पेक्ट ऑफ द फेज 2 ऑफ फेम स्कीम। गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट रिजीम के अंदर 2014 में फेज 1 ऑफ फेम स्कीम को शुरू किया था। अब जो सेकेंड फेज है उसे स्टार्ट किया गया अप्रैल 1 2019 से। अब देखिएगा, फेम का पूरा एस्पेक्ट है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। हम चाहते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका एडॉप्शन फास्ट करें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट हो। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हम चाहते हैं भारत के अंदर इंक्रीज हो, because largely we are relying upon China for the importing of various components of these battery vehicles, and that's what we want to change. We want to increase the domestic manufacturing sector of this electric vehicle. Approximately 86% of the budget has been allocated for demand incentives to create demand for EVs in the country। पहले तो हम चाहते हैं कि ईवी की डिमांड इंक्रीज हो। अब डिमांड के लिए कैसे इंसेंटिव्स देंगे। आप मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी के लिए आपको रोड टैक्स भरना पड़ता है, जो आरटीओ टैक्स है। जो ईवीज हैं उनके लिए आरटीओ टैक्स माफ है। इस कारण से मेरे प्यारे बच्चों, लोगों का रुझान रहता है कि वो गाड़ी खरीद लें ईवी। अगर आप 20 लाख तक की गाड़ी ले रहे हैं तो उसके ऊपर 2 लाख तक का तो टैक्स पड़ जाता है, और वो टैक्स अगर माफ होगा
तो इवेंचुअली आपको एक इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को तो नुकसान है ना, तो वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है क्योंकि स्टेट का होता है वो रोड टैक्स। तो फिर आता है, हम चाहते हैं कि जो स्कीम है ये वो फोकस करे ई बसेस के ऊपर, राइट, थ्री व्हीलर्स के ऊपर, ई फोर व्हीलर पैसेंजर कार्स के ऊपर और ई टू व्हीलर्स के ऊपर। मतलब पहले तो क्या था कि हम सिर्फ फोर व्हीलर्स के ऊपर और टू व्हीलर्स के ऊपर फोकस थे। फेज टू के अंदर हमने क्या किया, फेम टू में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और बड़े जो ट्रक्स और बसेस हैं उनको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। Only advanced battery and registered vehicles are eligible for incentivization under this scheme. ठीक है? Then the government of India has taken following steps to give incentives. पहला, फेम इंडिया। देन हमने क्या किया, पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें हमने बजटरी एलोकेशन में 26,000 करोड़ के आसपास पैसा दिया ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स को इंक्रीज करें। सेकेंड, जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल हैं, जैसे कि जो हमारे लिथियम बैटरी सेल हैं, उनके लिए आउटले तय किया गया। फिर जीएसटी को भी रिड्यूस किया गया 12% से 5% पे। फिर उसके साथ साथ दिस MORTH announced, Ministry of Road and Transport announced that the battery operated vehicles will be given green license plates, है ना, इसलिए उनको ग्रीन प्लेट आपने देखी होगी। और उसके बाद इनको कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इन्होंने नोटिस जारी किया कि आप इनका रोड टैक्स भी क्या करो, वेव ऑफ करो। सो फेम इंडिया में ये सारी चीजें, ये फेम इंडिया एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया। फिर पीएलआई स्कीम आ गया। फिर उसके साथ साथ हमने जीएसटी में एग्जम्पशन दिया। फिर ई व्हीकल में ग्रीन ऑपरेटेड प्लेट्स आई और फिर रोड टैक्स को वेव ऑफ किया। अब जो लास्ट स्कीम है इस संदर्भ में, जिसे हम कहते हैं पीएमई ड्राइव, पीएमई ड्राइव स्कीम, जो कि लार्ज स्केल पे हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस स्कीम ने 10,900 करोड़ का ओवरले दिया है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखो क्या हुआ, हम अभी भी चाहते हैं कि अप फ्रंट आके जो ईवीज का एडॉप्शन है वो एक्सपीडाइट हो, फास्टर हो। देन हम इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि जब जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे वैसे वैसे और बेहतर तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि हम इंसेंटिवाइज कर सके और लोगों को प्रमोट कर सके, मोटिवेट कर सके टू अडॉप्ट दीज ई व्हीकल्स। ₹500 crore फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ई एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स, जैसा कि मैंने बोला ना। और ये ई ट्रक्स के साथ साथ व्हीकल्स स्क्रैपिंग सेंटर्स को भी इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया है, राइट। देन वी हैव इज दिस न्यू स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ द पीएमई ड्राइव स्कीम, जो कि 2026 तक था, उसे हम 2028 तक ले गए। इसे 8 अगस्त 2025 को प्रमोट किया गया बाय पीआईबी दिल्ली श्री एच.डी. कुमारस्वामी, राइट, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री। Then we see one more thing. Government approves e-vehicle policy to promote India as a manufacturing destination for e-vehicle. हम manufacturing destination बनाना चाहते हैं। Has approved the scheme to promote as a manufacturing destination so that e-vehicles with the latest technology can be manufactured in the country. ये तो सारे schemes हैं that you can see at your place. I just want to showcase you the aspect of PM e-drive scheme. इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप पीएम ई ड्राइव देखेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज अ रेवोल्यूशन, राइट, रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया गया 4150 करोड़, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, 3 साल फॉर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कस्टम ड्यूटी, राइट, ये सारी की सारी बैंक गारंटी और ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पीएमई ड्राइव स्कीम। और ये वो चीज है जो मैंने डायरेक्टली उठाया कहाँ से, पीआईबी से, जहां पे 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया है। बस लास्ट भाग ये है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। भारत के अंदर जो मोर डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर करंट इंडियन ईवी प्रोड्यूसर टू compete on pricing with more established firms।
ये बहुत मुश्किल है, जो कि स्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं उनके साथ compete करना। दूसरा, एक ना क्वालिटी इश्यूज का फर्क पड़ रहा है कि हम ईवीज में आ तो गए हैं, बट जैसे कोई भी कंपनी है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में आप जानते होंगे जहां पे बहुत से कंप्लेंट्स रेज हुए कि उनकी जो क्वालिटी है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, राइट। एंड वहां पे आग लगने के बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए। तो दिस इज समथिंग विच इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हेयर। देन हमारा मेजर फोकस है ना, क्या है, असेंबली पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है। तुलसी गो टू गुड़गांव, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, वहां पे सब कुछ आता है। मतलब उसमें क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सारा ढांचा पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपने घर लाके उसको असेंबल कर डालना है, दैट इज इट। नथिंग बियॉन्ड देन दैट इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हाट वी डू नॉट वांट। व्हाई? हम असेंबली थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी। असेंबली से कौन सी जॉब्स क्रिएट होंगी? नहीं होगी जॉब्स क्रिएट। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाओ, तब जाके ईवी का प्रमोशन हम भारत के अंदर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। आप एक बार फेम दोबारा और पीएम ई ड्राइव दोबारा देख लीजिएगा, राइट। बेनिफिट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझा दी है ना। लिथियम आयन बैटरी की वर्किंग मैंने आपको बता दी, आईसी इंजन की वर्किंग मैंने आपको बता दी। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। नाउ इन दिस continuation, we are going to discuss the last part, and that is the sustainable development and land degradation. लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि लैंड डिग्रेडेशन आखिर है क्या। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब भी किसी लैंड की जो क्वालिटी है, टू गिव द लैंड की क्वालिटी टू प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू प्रोड्यूस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ टाइम। यहाँ पे आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की, जहाँ पे बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग दैट वी वांट इज रिड्यूसिंग। देखिएगा, land or soil degradation is referred to the deterioration of soil quality and health, often resulting from unsuitable land management practices. This is something we call as land degradation, right? अब कोई भी एक लैंड है, उसके ऊपर सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को हमने रिड्यूस कर दिया बाय एनी मीन्स, either because of the excessive use of fertilizer, either because of the erosion, either because we have left the land fallow and wind have eroded the place, because of the action of river, the gully erosion and the ravines have been created. Eventually, if it is leading to the development of a land which has not sufficient quality of soil to provide us with the produce we want, we call it as land degradation. अगर किसी भी सॉइल की बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस टू प्रोवाइड प्रोड्यूस decreases, we call this as land degradation. Simple as that. अगर किसी भी सॉइल की बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी, फर्टिलिटी कम होती है हमें किसी भी तरीके से प्रोड्यूस को प्रोवाइड करने में, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। और अगर ये लैंड डिग्रेडेशन बच्चा होता है किसी एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया के अंदर, एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया के अंदर, तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेजर्टिफिकेशन मिलेगा। इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। यस, डेजर्टिफिकेशन का मतलब स्प्रेड ऑफ डेजर्ट है,
बट डेजर्टिफिकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, और इस अम्ब्रेला टर्म का मेजर पार्ट यही है कि हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि इस लैंड का डिग्रेडेशन अगर सेमी एरिड, एरिड और सब ह्यूमिड एरिया में हो रहा है तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन की संज्ञा देंगे। तो लेट मी फर्स्ट शो यू समथिंग रिलेटेड टू दिस डेजर्टिफिकेशन। जस्ट गिव मी व्हाइल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले desertification is the process by which once fertile and cultivable land is transformed into desert or barren uncultivable wasteland. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं desertification. It can be associated with the expansion of desert like condition, जैसे कि सहारा के डेजर्ट का एक्सपेंशन होना साउथवर्ड इनटू द साहेल रीजन, जैसे कि थार डेजर्ट का एक्सपेंशन होना ग्रेजुअली ईस्टवर्ड, राइट। और उसके साथ साथ डेजर्टिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है कहां पे? चंबल रीजन के अंदर। अब आप एक बात समझो, यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो, हम बात कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है। अब ये लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? जो सॉइल है, उस सॉइल की क्वालिटी क्या हो गई है? डिग्रेड हो गई है। सॉइल क्वालिटी क्या हो गई है? डिग्रेड हो गई है। अब ये सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो गई तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है सॉइल इरोजन, राइट। दूसरा कारण हो सकता है सॉइल पोल्यूशन, राइट। और तीसरा कारण हो सकता है सॉइल सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल का पोल्यूशन हो गया, या सॉइल सेलिनाइजेशन, सॉइल सेलिनाइजेशन, राइट। इन तीनों केस के अंदर जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम होगी, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके साथ साथ डेजर्टिफिकेशन को भी काउंट कर रहा हूं तो डेजर्टिफिकेशन क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे दो चीजें। पहला तो लैंड डिग्रेडेशन इन इन एरिड, सेमी एरिड, इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज, एंड इन सब ह्यूमिड एरियाज वन, प्लस डेजर्ट लाइक spread of desert like condition, spread of desert like conditions। तो अगर आपसे पूछे कि डेजर्टिफिकेशन के क्या कारण हैं, तो आप लैंड डिग्रेडेशन के जितने भी कारण होंगे वो तो देंगे ही, बट उसके साथ साथ एक चीज ये भी ऐड कर देंगे। अब सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, राइट, ड्यू टू विंड, विंड, वाटर, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस किस तरीके से इरोजन होता है। इसे हम रिल इरोजन, गली इरोजन, इन सबके नामों से जानते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रिल इरोजन एंड गली इरोजन इज ऑल अबाउट। यू कैन सी हियर, दिस इज रिल, गली, कैनियन, गॉर्ज, बैडलैंड, रिवाइंस, इन सब का क्रिएशन होना। इनसे जो सॉइल है, इस सॉइल की क्वालिटी क्या होती है? सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, ठीक है जी। ये हो गया एक भाग। फिर आता है सॉइल पोल्यूशन, राइट। सॉइल पोल्यूशन का मतलब है इसके अंदर कुछ अनवांटेड, जो अनडिजायरेबल, अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस का ऐड होना,
राइट, सब्सटेंसेस का क्या होना, ऐड होना। सॉइल सेलिनाइजेशन का मतलब है सॉइल की सेलिनिटी। अब ये सॉइल सेलिनिटी मतलब सॉल्ट की लेयर का यहां पे क्या होना, जमना, सॉल्ट लेयर का यहां पे जमना। अब सॉइल इरोजन को दूर करने के लिए क्या है, अगर आप देखेंगे ये इरोजन जनरली आपको माउंटेनियस रीजन में दिखाई देगा, जहां पे हम कॉन्टोर फार्मिंग, है ना, और उसके साथ साथ कॉन्टोर फार्मिंग के साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। ये स्पेसिफिकली क्या करता है, इनको रिड्यूस करता है। सोइल सेलिनाइजेशन के लिए हम इसे ट्रीट करते हैं जिप्सम के साथ, वी ट्रीटेड विद द जिप्सम। ठीक है, ये बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़े तो हमें देखिएगा सीवियर लैंड डिग्रेडेशन जो कि चंबल रीजन में है, इसे क्या बोला जाता है, इसे रेवाइंस ही बोला जाता है। ये क्या है, सॉइल का डिग्रेडेशन ही है, लैंड का डिग्रेडेशन ही है। इसके बाद सॉइल सेलिनाइजेशन जो कि एक्सेसिव इरिगेशन के साथ होता है, जहां पे ड्रेनेज प्रॉपर ना हो। ओवर ग्रेजिंग से भी, जो कि सेमी एरिड एरियाज हैं, जहां पे पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, वो अप्रूट कर देती हैं ग्रासेस को, जैसे कि आपको वेस्टर्न यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलेगा। राइट, सो दिस इज अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन। अब हमने लैंड डिग्रेडेशन तो समझ लिया, डेजर्टिफिकेशन भी समझ लिया। जो डेजर्टिफिकेशन का स्टेटस है वो क्या है, डेजर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है भारत के अंदर, डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया, इसका डेटा मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड द डेटा सेज, यू कैन सी हियर, द डेटा सेज India is among the top countries which is most vulnerable to this desertification. Approximately 30% of India's total area is already affected, right? Then nearly 50% of land is either under desertification or showing the signs of degradation. Around 75% of India's geographical area is either semi-arid or arid climate, making it highly susceptible or prone to desertification. And the most affected areas are Rajasthan, Andhra, Telangana, Gujarat, Jammu, and Kashmir. What are the various causes? अब जैसे कि मैंने आपको बताया, causes के रूप में आप देख सकते हैं, we have semi-arid and arid climatic condition. बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे ड्रॉट और हम खाली लैंड को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कि जैसे ड्रॉट की बात करें तो अल नीनो जैसे इवेंट हो गए, क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड है। फेलोइंग मतलब हम खाली छोड़ रहे हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। देन लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू सेलिनाइजेशन, जहां पे ज्यादा पानी है वहां पे हमने एक्सेसिव यूज कर लिया इरिगेशन का, है ना, इसकी वजह से सॉइल क्या हो गई, सेलाइन हो गई। फिर इरोजन हो गया, क्यों, वाटर ने क्या कर दिया, रन ऑफ कर दिया टॉप सॉइल को। फिर डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, दिस इज समथिंग वी कॉल एज डेजर्टिफिकेशन। ये मैंने आपको लैंड यूज चेंज के अंदर भी बताया था। मेजर्स टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखिएगा जब इसके मेजर की बात आती है तो हमने रियो अर्थ समिट पढ़ा, और उस रियो अर्थ समिट का एक भाग था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। In this United Nations Convention to Combat Desertification, which was established in 1994, this was specifically established to address the problem of land degradation and desertification and drought, particularly in arid, semi-arid and dry subhumid areas. यही तो मैंने लिखा। One of the key outcome of Rio Summit, India is the signatory to it since its adoption, and India has ratified it in 1996. इसकी भी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज
द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। न्यू दिल्ली के अंदर यूएनसीसीडी का रिसेंटली थोड़े समय पहले समिट हुआ था, एंड जब वो समिट हुआ तो उसका रिजल्ट निकला न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। अभी रिसेंट जो समिट हुए हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं क्या बात आती है। बट जब लैंड डिग्रेडेशन आएगा तब आप एक बात अपने जहन में रखेंगे, वो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। व्हाट इज दिस लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि एक ऐसा कमिटमेंट है जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 के अंदर दिखाई देगा, SDG 15। ये जो SDG 15 है इसके अंदर आपको दिखाई देता है लैंड का जो डिग्रेडेशन है उसमें न्यूट्रलिटी लानी है। मतलब हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं वो मेंटेन्ड हैं और मैनेज्ड हैं इस तरीके से कि जो भी लैंड डिग्रेड हुई है उनका हम कंपनसेशन कर सकें। जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आपने जितना कार्बन एमिट किया उस उतना ही कार्बन आप क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, सिंक कर लो। वैसे यहाँ पे क्या है, आपने जितना लैंड को डिग्रेड कर रहे हो उतना ही साइमल्टेनियसली मेंटेन और मैनेज भी करो, जिससे लैंड का डिग्रेडेशन जो है उसमें न्यूट्रलिटी स्थापित की जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है। और इस लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए कौन चैलेंज, यानी कि 2011 के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने इन कोलैबोरेशन विद IUCN, आई होप नाउ यू नो अबाउट इट, वो बोला कि हम 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड को 2020 तक क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। कि 2020 तक हम क्या करने वाले हैं कि 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड और डिफोरेस्टेड लैंड है उसको रीस्टोर करेंगे और 350 मिलियन हेक्टेयर रीस्टोर करेंगे बाय 2030। इंडिया को लगा ये अच्छा मौका है, हम भी इसको ज्वाइन करते हैं। इंडिया ने इस चैलेंज को 2015 में ज्वाइन किया और बोला कि हम 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड को, डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करेंगे बाय 2030। बट 2019 में हमने इसका टारगेट इंक्रीज कर दिया 26 मिलियन, 26 मिलियन टू रीस्टोर दी डिग्रेडेड लैंड। दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? बट भारत ने इसके संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए हैं, इसको समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के भी समझने होंगे और दोनों साइमल्टेनियसली हम समझेंगे ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरीके से डिग्रेडेड और डिफोरेस्टेड लैंड को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसका एक रिलेशन आपको REDD और REDD प्लस के साथ भी दिखाई देगा, वो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो पहले हम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव टू दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन के ग्लोबल रिस्पॉन्स की, तो उसमें सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इन रिलेशन टू द पेरिस एग्रीमेंट। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कमिटमेंट्स हुए उन कमिटमेंट्स में भी आपको कुछ भाग लैंड डिग्रेडेशन को लेकर भी दिखाई देंगे। जैसे अगर आप कार्बन के एमिशन को सिक्वेस्टर करना चाहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए वी नीड व्हाट, वी नीड एफोरेस्टेशन। और जैसे ही एफोरेस्टेशन होगा आप जानते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके अंदर कमी दिखाई देगी। तो एक पार्ट तो ये है। इसी को देखते हुए आप एक बात देखिए, अगर हम कमिटमेंट्स देखते हैं कंट्रीज की टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, उसमें आपको सोइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को एनहेंस करना, उसके साथ साथ इंप्लीमेंट करना सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाता है। इसी के अंदर आप एक चीज देखते हैं एंड दैट इज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो स्प्रेड है सहारा डेजर्ट का वो होता जा रहा है साहिल रीजन के अंदर। उस स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए वी हैव कम अप विद द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एंड दिस इनिशिएटिव सेज
वी आर गोइंग टू क्रिएट एक बहुत बड़ी पेड़ों की श्रृंखला बनाई जाएगी जो कि वेस्ट टू अफ्रीका से कंप्लीट ईस्टर्न पार्ट तक होगी और साहेल रीजन के अंदर होगी। ये सबसे बड़ी लिविंग चेन के रूप में काम करेगी जो कि सहारा के स्प्रेड को सदर्न साइड में आने से रोकेगी। इसी की तर्ज पर भारत में भी वी हैव द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की तर्ज पर ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जो कि पोरबंदर से पानीपत तक पेड़ों की एक श्रृंखला होगी जो भारत के थार डेजर्ट को ईस्टर्न पार्ट में स्प्रेड होने से रोकेगी। जब हम ग्रेट ग्रीन वॉल की बात करते हैं, ये सहारा साहेल अफ्रीका रीजन के अंदर है जो कि लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए और वहां के नेटिव प्लांट लाइफ को रिस्टोर करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। Over 4 million hectares has been restored by 2023, right, surpassing the 2030 target. इसके साथ साथ रियो समिट 1992 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया कि लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज है और इसी से हमने यूएनसीसीडी की स्थापना भी की। इससे की कन्वेंशन जो कि सामने आते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और यूएनसीसीडी तो इसका एक डायरेक्ट आउटकम है ही। अब यहां पे एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं आरईडीडी प्लस, राइट। आरईडीडी प्लस का मतलब यह है कि आप रिड्यूस कर रहे हैं एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, राइट, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फेयर इनफ। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ अर्ली 2000 के अंदर, जिससे हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय एड्रेसिंग द फॉरेस्ट लॉस एंड डिग्रेडेशन। आप जानते हैं जैसे ही डिफोरेस्टेशन होगा, जैसे ही डिफोरेस्टेशन होगा, उस डिफोरेस्टेशन के कारण लार्ज स्केल पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होने लगता है, क्योंकि ये बेसिकली जो ट्रीज एफोरेस्टेशन के माध्यम से कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, वो उसका सिक्वेस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक स्टडी कहती है आरईडीडी प्लस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफोरेस्टेशन के रेट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज कॉप 26 के अंदर 141 कंट्रीज ने ये कमिट किया कि हम फॉरेस्ट लॉस को रिवर्स करेंगे and will also try to reverse the land degradation by 2030. I'm sorry. Why specifically we have this 2030? क्योंकि SDG 15 जो बात कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की, वो भी हम अचीव करना चाहते हैं। अब आते हैं सोइल डिग्रेडेशन को अगर हमने रोकना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो व्हाट आर दी वेरियस स्कीम्स। देखिए यहां से हम लिंकेज क्रिएट करना चाहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर जो कि आगे आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं उनके साथ अडेप्ट करके जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम करें उसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में देखेंगे। In the past, we have used excessively the amount of fertilizers, which has led to the salinization of soil, which has led to the problem of fertility and productivity of the soil. For this, we have realized that we have to come up with some particular aspects which will tackle the ideas of this land degradation. इसमें जो सबसे पहली है उसे हम बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत लार्ज स्केल पे प्रमोट करना चाहती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, एंड इसीलिए इन्हीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम परंपरागत तरीके से कृषि को करेंगे। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यह है कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं
इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट, वन थिंग इज दिस। सेकेंडली, जो मिशन है एग्रीकल्चर का, दैट इज द मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जिसको हम सेम के नाम से जानते हैं, 2015 में प्रमोट आया, जिससे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। थर्ड वी हैव इज द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इन सबको करना चाहते हैं। राइट, यहां से अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंटली जो मेजर्स लिए गए, उनमें एक भाग आप सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के रूप में देखते हैं, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि 2014 में लॉन्च की गई, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रमोट करें क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। इनमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं, उनकी हम बात करें। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो स्ट्रेटजीज हैं टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जहां पे हम चाहते हैं कि मेजरली वी हैव टू सी दिस आइडिया ऑफ मैनेजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर रिपोर्ट कहती है कि हम पीएम प्रणाम 2023 में लेके आते हैं कि इस स्कीम का पोटेंशियल है कि हम फर्टिलाइजर के यूज को बैलेंस करें और हमारी जो रिलायंस है केमिकल फर्टिलाइजर पे, उसको कम करें। राइट, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने कुछ एस्पेक्ट लिखे भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट इज अबाउट द परंपरागत कृषि विकास योजना, पीएम प्रणाम स्कीम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें आप प्रमोट करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को, कंपोस्ट को और ऑर्गेनिक इनपुट्स को। फिर आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और रैशनलाइज करना चाहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को, जो कि आपको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में दिखाई देगा। नीम कोटेड यूरिया और लिक्विड एंड नैनो यूरिया, जो कि अप्लाइड किया जाएगा डायरेक्टली टू द लीव्स एंड विल इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द सॉइल इंपैक्ट। इसके साथ साथ हमने बात की थी एक और भाग की, वो ये है कि हम देख रहे हैं ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को। राइट, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जो कि इंस्पायर्ड है ग्रीन बेल्ट ऑफ द साहेल से, जो कि इंडिया का वर्जन है, पोरबंदर से पानीपत तक है, थार के स्प्रेड को रोक रहा है। राइट, सो दिस इज अबाउट, और कैंपा मैं आपसे ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां से एक लास्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। राइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखिएगा, ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं। हम इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लैंड डिग्रेडेशन को कम करना चाहते हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से होने वाले एमिशंस को भी कम करना चाहते हैं। अब इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस जो है दैट इज जीरो टिलेज। यहां से मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जीरो टिलेज फार्मिंग पे। ये बस लास्ट के टॉपिक्स हैं, कंक्लूजन बाद में देता हूं मैं आपको। सबसे पहला आप यहां पे लिख लीजिएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें आप देखते हैं जीरो टिलेज फार्मिंग। अब जीरो टिलेज फार्मिंग का क्या मतलब है? देखिए बच्चा, होता क्या है, जब भी फार्मर कभी भी इस लैंड को एक बार उसने वहां पे कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन करने के बाद क्या हुआ, कल्टीवेशन करने के बाद इफ यू विल सी, कल्टीवेशन करने के बाद आपको वहां पे जो भी हार्वेस्टिंग हुई तो रेजिड्यू बचा, है ना। अब जनरली क्या होता है, फार्मर प्लोइंग करने से पहले मैकेनिकल स्टीयरिंग करता है। मैकेनिकल स्टीयरिंग का मतलब है
वो जो नीचे की सॉइल है उसको ऊपर लेके आना, ऊपर की सॉइल को नीचे लेके आना, ये मैकेनिकल स्टीयरिंग है, राइट, जिसे हम टिलेज कहते हैं, टिलिंग कहते हैं। जीरो टिलेज फार्मिंग में हम इस टिलिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मैकेनिकल स्टीयरिंग ना हो, रदर जो टिल है, मतलब नो टिलेज और निल टिलेज, आप जो प्लांट की क्रॉप सीड्स हैं वहां पे डायरेक्टली विद ड्रिल्स, विदाउट प्रायर लैंड प्रेपरेशन और सॉइल डिस्टर्बेंसेस, उसको क्या कर दो, जहां पे प्रीवियसली स्टबल रिमेन्ड था वहां पे उसको फार्म कर दो। मतलब आपने कोई मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं किया, मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं है, ठीक है। लैंड का जो सॉइल है, सॉइल का कोई भी किसी भी तरीके से आपने डिस्टर्ब नहीं किया है, सॉइल को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, राइट, सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया है, इन सब तरीकों से। और उसके साथ साथ आपने जो पिछली बार का जो रेजिड्यू था उसे भी पड़ा रहने दिया, उसे हम जीरो टिलेज फार्मिंग कहते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, रेजिड्यू जो पिछली क्रॉप का था, उस रेजिड्यू के डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन के बाद उस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ऐड होगी, 1। सेकेंडली, ये जो रेजिड्यू है ये मल्च की तरह काम करेगा, जो कि वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। थर्ड, एक एक्स्ट्रा लेयर है सॉइल के ऊपर जो कि सॉइल को इरोजन को प्रिवेंट करेगी। 3। फोर्थ हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये रेजिड्यू है इसके पास प्रीवियसली ग्रोन क्रॉप का क्या था, कुछ मॉइस्चर था, तो इसके पास मॉइस्चर अभी भी होगा, तो वाटर का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। इसे बोला जाता है जीरो टिलेज फार्मिंग, राइट। और उसके साथ साथ अगर आप रेजिड्यू को बर्न करते, सॉइल को स्टिर करते, तो इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस होते और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता, अगर बर्निंग होती कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता, बायोमास बर्निंग से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते, उन सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। दिस इज वन प्रैक्टिस, वी कॉल इट एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सेकेंड इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है आप सारी प्रैक्टिसेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज नॉट इन्वॉल्विंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज पेस्टिसाइड। आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें। मतलब यह है, लेट्स से इफ आई हैव दिस फार्म एंड आई एम ग्रोइंग अ क्रॉप, इस क्रॉप के अंदर मैं इस आउट ऑफ फार्म इनपुट दे रहा हूं, इनपुट में दे रहा हूं इसको, मैं इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं टिलिंग भी कर सकता हूं, मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूं लैंड को, प्लोइंग भी कर रहा हूं, बट मैं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दे रहा, मैं केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं अप्लाई कर रहा। इंस्टेड ऑफ इट आई एम यूजिंग बायो फर्टिलाइजर, आई एम यूजिंग कंपोस्ट, राइट, आई एम यूजिंग बायो पेस्टिसाइड, नीम का इस्तेमाल कर लिया, वो सब मैं यहां पे कर पा रहा हूं, बट मैं केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करता। इससे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूं, राइट। ये सारी चीजें यहां पे आती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से। थर्ड प्रैक्टिस हेयर वी कॉल इट एज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, व्हाट एग्जैक्टली दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज, आई हैव दिस फार्म, ये कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग है। मैं इस फार्म के ऊपर किसी भी तरीके से ऑफ फार्म जो इनपुट है वो प्रोवाइड नहीं करूंगा। ऑफ फार्म इनपुट प्रोवाइड नहीं करूंगा मतलब क्या है, मैं ना ही किसी तरीके का बायो फर्टिलाइजर, ना बायो पेस्टिसाइड, किसी भी तरीके की ये चीजें मैं यहां पे ऐड ऑन नहीं करने वाला हूं। जो है वो इसी फार्म के अंदर है। केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर तो दूर की बात है, मैं बाहर से भी कुछ नहीं लाऊंगा, बाहर से भी कुछ नहीं लाऊंगा। तो बोले खेती कैसे करोगे, कि सर मेरे पास सीड है, इस सीड को मैंने काऊ डंग के अंदर डिप किया, काऊ यूरिन के अंदर डिप किया और स्प्रेड कर दिया। जो भी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है, उस नेचुरल फर्टिलिटी से ये क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा।
इसके अंदर जीवामृत, बीजामृत, वापसा, आच्छादना 4 मेजर तकनीक होती हैं, जहां पे आपको मैं दिखा देता हूं सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो टिलेज, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. यहां पे आप देखिएगा, यू हैव जीवामृत, you have bijamrit, you have achadana, right? You have vapasa. अब जीवामृत का मतलब है आप फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर दैट विल एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का आपके पास एक सॉल्यूशन है. बीजामृत, द मिक्सचर ऑफ सेफगार्ड यंग रूट्स फ्रॉम सॉइल बोर्न एंड सीड बोर्न डिजीजेस इफेक्टिवली. ये क्या करते हैं, देसी काऊ का डंग होता है, यूरिन होता है, जैगरी होता है, उन सबको मिला के ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार करते हैं. आच्छादना मतलब आपने क्या किया, बायोमास का सॉइल के ऊपर मल्चिंग, बेसिकली एक पूरी की पूरी लेयर बिठा दी. व्हेन वापसा, वापसा का मतलब है कि आप जो सॉइल है, वाटर मॉलिक्यूल है, जो सॉइल का मॉइस्चर है, उसे मेंटेन कर रहे हैं. इसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में देखते हैं. आप इरिगेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर लॉगिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, और एक ऑल्टरनेट फरो, मतलब आप उस सॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिज एंड फरो सिस्टम बना रहे हैं, जिससे पानी का ड्रेनेज अपने आप मैनेज हो जाता है. जीरो बजट, इज इट इंडीड जीरो बजट? यू आर यूजिंग काउ डंग, so it means you need cow, right? So it is not indeed zero budget, but metaphorically ये use किया गया term है, जहां पे अगर आप ऑफ फार्म इनपुट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, if you are not providing the off farm inputs, eventually it is true that this off farm input is ये जो ऑफ फार्म इनपुट्स आने हैं, इस ऑफ फार्म इनपुट के कारण कॉस्ट तो बढ़ती है. अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, बट रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, दिस इज स्टिल अंडर क्वेश्चन, राइट? आई एम सॉरी. जैसे जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बड़ा सेटअप है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बड़ा मार्केट स्टेब्लिश हो चुका है, बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज स्टिल making their roots to be planted in the entire market, and this is the concept which is developed by Subhash Palekar. This concept is developed by Subhash Palekar. These are the major techniques related to the sustainable agriculture, right? So this is all about environment that we can deal here in this series. At the end, I just want to address one last thing, that if you are going to read these topics from this series, you'll be hardly left with any topic. I have tried my best to cover each and every area. बस आपको जो लास्ट लेवल पे करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द करंट अफेयर्स. इफ यू विल इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स, just remember, with this series you will have good chunk of static aspects. You just go on with the current affairs. Most probably I'll be making certain videos of current affairs in the coming times. करंट अफेयर्स जब आप कर लेंगे एनवायरनमेंट के, तो आप मान के चलिएगा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डेल्ट, राइट? अब आप क्या करिए, आपका आगे आने वाला रूट क्या होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें, उनको सॉल्व करें, एंड उसके साथ साथ जो सृजन की टेस्ट सीरीज है वहाँ से आप जो सृजन प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, या जो रिग्रेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, उससे आप मॉक क्वेश्चंस लगाएं, एंड देन आप करंट अफेयर से अपनी नॉलेज को ऐड करें. इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. आपको पता लग गया है कि इस वीडियो के अंदर, इन वीडियोस के अंदर आई हैव कवर्ड almost everything, almost everything. I hope you people have loved this entire series, and I wish all of you who are watching me with the help of this entire series will be able to will be able to get the success in the coming years of prelims. And मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से थरली अपने नोट्स के साथ रिवाइज करें, और जो मैंने फाइनल आइडिया है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया है. नेक्स्ट टाइम विल सी यू विद सम अनदर कंटेंट, or with the add-ons to the aspect that we have seen this year.
right? Thank you so much. Signing off. Bye bye, guys. See you next time.